1798. बस 2 लड़कियां। एक रेनेसेंस और दूसरा समृद्धि, और कोई नहीं है। समृद्धि, आज क्या करना है? समृद्धि नहीं बोलो। यस सर। आज क्या करना है? बुक है? हाँ सर। बुक है तो बताओ कहाँ तक किए थे? तो कंप्यूटर think वर्म्स कर लिए थे, ट्रोजन हॉर्स स्टार्ट कर ट्रोजन हॉर्स तक किए थे। करना है। ट्रोजन हॉर्स करना है। हाँ कंप्यूटर वायरस, ट्रोजन हॉर्स, बहुत है। चैप्टर थोड़ा लंबा लग रहा है क्या? आज खत्म, फिर और आज खत्म, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। वी हैव ओनली 10, 11 in the class. Can you listen me clearly, Samriddhi, today? यस सर। Okay, okay, that's fine. Because I'm a little doubted because my microphone is not working because of the software I had updated. Due to any reason, it may have not taking the drivers. देखो अंकित कुमार, क्या अंकित कुछ बोलना है? नो सर। नो सर। अच्छा, तो चलो पढ़ते हैं, है ना? तो लेट अस स्टार्ट आउट विथ ट्रोजन हॉर्सेस। रेनेसेंस से कुछ बोलती ही नहीं है हमसे आजकल। क्लास 5 में थी तो बहुत बोलती थी। रेनेसेंस, आर यू देयर? यस सर। Yeah. Okay, so let's start. Trojan horses. Now, as I said during the previous class, that Trojan horses, in the first look, they appears very useful. अब ये जो Trojan horse, I think I said you that story of Troy, the demolition of the city Troy. ट्रॉय में के टाइम में रोमन्स के साथ जब युद्ध हो रहा था, at that time I think you had read that in the history also. तो क्या किया, ट्रॉय को जीत नहीं पा रहा था, ट्रॉय के सिटी में घुस नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ द ह्यूज फोर्ट. So what they did, the Romans, they built a beautiful wooden horse. They built a beautiful wooden horse and placed that horse at the gate of the fort of Troy. Next morning, when the people of Troy wake up, they saw the beautiful wooden horse outside the gate. So what they did, they pulled
द हॉर्स इनसाइड, क्या किया, घोड़ा को अंदर लेके चल गया, पुट के अंदर. And in the evening, at night, when all were asleep, the soldiers, the Roman soldiers from that came out from the horse and opened the gate of the fort. And they were able to conquer Troy. So same thing, same theme is taken from that particular history. So here in computer, Trojan horses, they appears to be a beautiful and useful software, and we install them without thinking twice. We install them, and so once it is installed, they do open the door for viruses and unauthorized persons to get into the computer. देखो, शुरू हुआ नहीं, हाथ उठाना शुरू हो गया. Okay. So as I said, Trojan horses, they appears in the first look, they appears at beautiful or wonderful and your useful softwares, and once installed, they open the gate or the ports for malicious softwares and viruses to enter the computer system. Next is spywares. Now, what by the name itself you can understand it is spyware. Spy. You know the meaning of spy. So what they do? They does nothing in the computer system. They just stays and lays down, lays back in the computer system once they enters, and they just keep an eye on the vital personal information. And they keep an eye on the vital personal information that you had stored in your computer system. Once they get the source of your information, this transfers the information to unethical people. You may use, I'm not saying they will use, they may use your personal information for destructive purposes. Next, I'm not going to talk to anyone now. Once I finish, I'll allow you to talk. The steps to prevent viruses. How to prevent virus? To prevent virus, the first and foremost thing what you need is to install a antivirus software. Now, when we talk about the antivirus software, the antivirus softwares, all antivirus softwares do not provide all the facilities, or one antivirus software is not capable of stopping, may not be capable of stopping all the malicious softwares those we had came across yet. अभी तक हम लोग जितने भी पढ़े, सबको रोक पाने की क्षमता किसी एक सॉफ्टवेयर में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो डिपेंड करता है कि हम लोग किस टाइप का एंटीवायरस या कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं. सारे चीज नहीं भी हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन स्टॉप द वायरसेस यूजिंग एंटीवायरस. वायरस को आने से रोक सकते हैं एंटीवायरस से, बट इन केस ऑफ स्पाईवेयर्स, एंटीवायरस इज नॉट इनफ. स्पाईवेयर को रोकने के लिए एंटीवायरस काफी नहीं होगा, उसमें एंटी स्पाईवेयर भी होना चाहिए, मैलवेयर प्रोटेक्शन होना चाहिए, इंटरनेट सिक्योरिटी होनी चाहिए, इंटरनेट प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उसके बाद फिनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रोटेक्शन होना चाहिए. तो ये सारे चीज हो भी सकता है कि एक में हो, या हो सकता है एक पर्टिकुलर एंटीवायरस में ना हो. अगर किसी पर्टिकुलर एंटीवायरस में
ये सारे चीज नहीं है, तो हम लोग को अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ सकती है. फॉर एग्जाम्पल, टू प्रोटेक्ट द वायरस वी नीड एंटीवायरस. To protect from spywares, we need anti-spyware. To protect from malwares, we may need anti-malware. Trojans, they are mostly handled by the virus, antivirus. Trojans को antivirus पकड़ सकता है. Along with that, we also need another software that will filter the incoming and outgoing information. We need a special software that can filter the incoming and outgoing informations, and though that we say firewalls. Firewall. Now, what is firewall is? It is a software that checks. It is the firewall is the software that verifies or filters every incoming and outgoing information. If it finds that a particular information is being requested by a non-legate source, it may block that particular request. अब ये क्या है सर, समझे नहीं कि रिक्वेस्ट क्या है, क्यों होता है, कहाँ से आता है. जैसे मान के चलो हम लोग जब गूगल खोलते हैं, तो गूगल तो मेरे कंप्यूटर में नहीं होता है, किसी के कंप्यूटर में नहीं है, गूगल किसी और कंप्यूटर में. तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल जब खोलते हैं, एक्चुअली वी सेंड अ रिक्वेस्ट टू द गूगल सर्वर. हम लोग क्या करते हैं, गूगल सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं कि भाई आपका पेज हमको दिखाओ. तो ये गूगल पे डिपेंडेंट है कि वो दिखाएगा या नहीं दिखाएगा. Many people are saying that they are unable to connect. One is Shyam. Yeah, one is Shyam. But how can I help you? Cannot connect to your service. Please check your network connection. तो तुम्हारे भाई देखो साफ साफ क्या बता रहा है, देखो. Please check your network connection. And why are you showing me? Why are you sending me this type of problem? भाई प्रॉब्लम आपका है, तुम्हारा है, हमको क्यों दोष देते हो? मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है. My network is stable. You can see it is clearly written, cannot connect to our service. Please check your network connection and try again. भाई नेटवर्क कनेक्शन तुम लोग का, तुम्हारा है, मेरे को क्यों दिखाते हो? हम क्या कर सकते हैं? आई कैन नॉट डू एनीथिंग. अब किसी का जूम में कनेक्शन नहीं हो रहा है या फिर तुम्हारा नेटवर्क स्लो है, भाई हम कैसे उसको सुधार सकते हैं? आई कैन नॉट डू एनीथिंग. You have to remember, I can only allow or don't allow. Unless I get the request, how can I allow? I'm still allowing the people getting in. अब एमडी अलशान को कम से कम 6 बार अलाउ किए हैं. अब वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा, तो मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूं? ओके, सो एनीवे, भाई सारा प्रॉब्लम टीचर नहीं सॉल्व कर सकता है, स्कूल नहीं सॉल्व कर सकता. प्रॉब्लम तुमको है, सॉल्व करो. गेट अ बेटर इंटरनेट कनेक्शन.
most of the people, most of you, I observe that you people, what you do, you watch the videos, YouTubes. और क्या होता है, सुबह सुबह जब जागे तो पता चला कि डेटा खत्म हो गया। अब डेटा खत्म हो गया तो मैं क्या करूँ, क्या कर सकते हैं? Most of you are using data, Jio or Airtel. I know it very well. So 1.5 GB data, and you may not be aware that the data is consumed not only for incoming, also for outgoing. सिर्फ इनकमिंग के लिए डेटा, सर हम तो सिर्फ 300 MB यूज किए थे। भाई 300 MB तुम डाउनलोड किए हो, अब ये 300 MB डाउनलोड करने के लिए और 150 MB का रिक्वेस्ट हमको भेजना पड़ा, ये तो समझोगे नहीं। अभी हम लोग रिक्वेस्ट समझ ही रहे थे कि हम लोग क्या करते हैं, गूगल, आई एम बैक टू द स्टडी अगेन, सो लिसन, दिस इज नॉट आई एम जोकिंग और स्कॉल्डिंग एनीवन। सो व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं, गूगल खोलने के लिए गूगल को एक रिक्वेस्ट देते हैं। क्या लिखते हैं, ऑन द ब्राउजर वी राइट www.google.co.in, लिख करके एंटर मारते हैं। अब जब एंटर मारते हैं तो क्या होता है कि वो रिक्वेस्ट जाता है, इसको गूगल सर्वर को रिक्वेस्ट जाता है। अब वो क्या करता है, तब वो डेटा छोड़ता है। अब जब छोड़ेगा तो मेरे कंप्यूटर में पहुंचेगा। अब मेरे कंप्यूटर में जैसे ही पहुंचेगा ना, जैसे हम रिक्वेस्ट किए थे या जैसे हम मेरे पास डेटा पहुंचा, दोनों ही टाइम क्या करता है, फायरवॉल चेक करता है कि हम रिक्वेस्ट किसको कर रहे हैं, और जो रिस्पॉन्स आ रहा है उधर से, जो रिस्पॉन्स अंदर आना चाह रहा है वो उसी जगह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है जहां जिसको हम रिक्वेस्ट दिए थे। अगर दोनों मिसमैच हुआ तो क्या करेगा, फायरवॉल तुरंत उसको ब्लॉक कर देगा। सिमिलरली हम लोग, मेरे कंप्यूटर में बहुत सारा कुछ होता है, you know it very well, all of you are using computers and you know at the background, जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करते हैं कुछ सर्विसेज अपने आप चालू हो जाता है, अपने आप, we cannot control them, and if we want to stop them, our computer may even shut down and stop working। हम लोग का कंप्यूटर बंद हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, शट डाउन ले लेगा, ब्लू स्क्रीन आ जाता है, एरर स्क्रीन बोलते हैं उसको, ब्लू स्क्रीन। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पीठ पीछे बहुत लोग बहुत कुछ मेरे कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करता है, और हम लोग बिना जाने उसको भेज भी देते हैं, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करता है फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है, इट चेक्स and verifies the source of incoming request and outgoing information। ये इनकमिंग रिक्वेस्ट और आउटगोइंग इंफॉर्मेशन का वेरिफिकेशन करता है, और वेरिफिकेशन करने के बाद क्या करता है, उसके हिसाब से वो सब जो है परेशान है करके रखा हुआ है। टट 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 टट। हम क्या करेंगे, तुम लोग का प्रॉब्लम है, तुम लोग जानो। क्लास के बीच में डिस्टर्बेंसेस। ओके, सो वी वर studying how to prevent viruses. The first point, we need a antivirus software. Second, we need to check whether the antivirus software can protect all the potential
if the antivirus software can protect all the potentially harmful programs. Means, can the antivirus protect you from the spyware? Can it protect you from the malware? Can it protect you from the trojans? Can it protect you from internet privacy? So you need to know about them. If it is not providing all, so you need to install separate softwares for them. सबके लिए अलग-अलग सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत हो सकती है. इंस्टॉल ए फायरवॉल, जो चीज अभी लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक फायरवॉल डालना जरूरी है. इंस्टॉल ए फायरवॉल टू कंट्रोल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक. इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एक फायरवॉल डालने की जरूरत है या फायरवॉल इंस्टॉल करने की जरूरत है. Always scan the pen drive before copying files. Why only copying files? I'm not saying only for copying files. As soon as you try to put the pen drive to your computer, first you must scan it. First you scan it. कुछ भी पेन ड्राइव को खोलने से पहले उसको स्कैन करो. And scanning is very simple. Scanning a pen drive is very simple. You just put the pen drive. Don't open it at all. किसी भी तरीके से खोलो मत. Then go to my computer. My computer में जाओ. पेन ड्राइव पे राइट क्लिक करो और स्कैन करो. अगर वायरस है तो पकड़ाएगा और अगर वायरस नहीं है तो आप हम लोग जो कुछ भी माने उसमें कर सकते हैं. Then scan the avoid downloading and installing pirated softwares from internet. That's the most important problem with us. Most of us uses pirated softwares. अब ये pirated softwares किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं pirated software? Pirated softwares are the softwares those we use are they are the paid softwares actually. Those we use without paying for it. ऐसे पेड सॉफ्टवेयर्स जिसके लिए हम लोग पेमेंट नहीं किए हैं मगर यूज कर रहे हैं, वही सबको बोला जाता है पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स. समझ में आया? नहीं आया? एग्जांपल MS विंडोज. हम लोग विंडोज यूज करते हैं, खरीदे थे, है मेरे पास लाइसेंस उसका? नहीं है. हम लोग के पास लाइसेंस नहीं है. लाइसेंस कैसे दिखता होगा? सर लाइसेंस तो बोल दिया, लाइसेंस कैसे दिखता होगा? इट इज अ 28 डिजिट और कैरेक्टर, 28 कैरेक्टर का एक नंबर होता है. ABCD से Z तक और 0 से 9 तक कुछ भी रह सकता है. अब ये नंबर जो है एक्चुअली लाइसेंस होता है. तो लाइसेंस नहीं है. अगर लाइसेंस होता उसको लाइसेंस नहीं बोला जाता, बोला जाता लाइसेंस की या CD की या सीरियल की बोलते हैं. अगर वो है तो जेन्युइन है, सही है. अब मेनी ऑफ यू में से सर हम जानते हैं मेरे कंप्यूटर में CD की डाला हुआ है. यस, तुम्हारे कंप्यूटर में CD की डाला हुआ है तभी तो वो चल रहा है, नहीं तो नहीं चलता. नहीं तो नहीं चलता. गौरव कुमार, यू बेटर स्टे आउटसाइड द क्लास. ओके, नाउ क्या होता है कि हम लोग के पास जो है CD की है. CD की है तो क्या जेन्युइन है? नो, मे नॉट बी. हम लोग जानते हैं, you may not be knowing, but we know that there are a lot of people who hacks, who cracks the softwares, and those hacked and cracked softwares we are using. So
we are always vulnerable to the viruses, क्योंकि हम जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं वो पायरेटेड है, वो जेन्युइन नहीं है। अब जब जेन्युइन नहीं है, जो उसको तोड़ा है वो उसके अंदर में क्या क्या डाला कौन जानता है? हमको नहीं पता क्या क्या डाला। You try to those who are smart enough, they may have tried installing some softwares using the crack keys और की जनरेटर। देखना, जैसे ही की जनरेटर या क्रैक डालने की कोशिश करते हो ना, एंटीवायरस बोलता है दिस इज अ वायरस, दिस इज अ ट्रोजन, द लेवल इज severe. Now we must avoid using those pirated softwares. This is number 6, I think. Scan the downloaded files before opening it. If you had downloaded any file from internet, अगर इंटरनेट से कोई भी फाइल हम लोग डाउनलोड करते हैं, उसको खोलने से पहले स्कैन करना कंपल्सरी, एकदम बहुत कंपल्सरी। क्यों? क्योंकि हम लोग इंटरनेट से डाउनलोड किए, एंड वी ऑल नो दैट इंटरनेट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ वायरस। अरे अंकित, खत्म तो होने दे, खत्म होने दे, मौका मिलेगा, काहे टेंशन लेते हो? नाउ नेक्स्ट, scan the hard disk twice a month. Why only twice a month? Why not every week? Is it necessary that महीने में 2 बार स्कैन करेंगे तभी वायरस पकड़ाएगा? हो सकता है कि वो वायरस ये 15 दिन के बीच में तबाही मचा दे, है ना? So it is not necessary that you scan only twice a month. You can scan randomly. जब मन किया, काम नहीं है, चलो वह स्कैन पे डाल दिया, है ना? जरूरी नहीं है कि इस महीने में 2 बार करना पड़े। हाँ, कम से कम 2 बार महीने में जरूर करें, कम से कम उतना कम से कम करना चाहिए। नेक्स्ट, टेक द बैकअप ऑफ important files. Here is the printing mistake. Backup of imported files every day will लिखा हुआ। It must not be imported, it must be important। ठीक है, हमको तो imported ही दिख रहा है। तो टेक द बैकअप ऑफ important files every day। जो भी फाइल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो उसको हर दिन बैकअप लेना चाहिए। अब बैकअप का मतलब क्या है? बैकअप मीन्स सेविंग द फाइल इन at different locations or storage devices. Saving the file at different storage devices. Now what happens if by chance, if मान लीजिए by chance आज हम लोग कुछ काम किए, बहुत इंपॉर्टेंट काम किए, उसके बाद जो है लैपटॉप इंटरनेट के साथ लगा रखते ही है, अब किसी कारण से जो है ध्यान नहीं रहा और वायरस आ गया। At any moment of time it may happen. Now what happens? The next day all our files may get corrupted. Our computer may not even start. तब क्या करेंगे? आज जो काम किए कल हमको फिर से माथा पेची करके तो वही काम करना पड़ेगा। So why not we keep it somewhere else? कहीं और सेव करके रख लेते हैं, तो क्या होगा? मेरा कंप्यूटर अगर काम करना बंद भी कर दिया आज, तो कल फिर से हम लोग अपना काम को वापस ला सकते हैं। That's why it is very important to take the backup of important files every day. Next, use internet and email attachment very carefully. ईमेल अटैचमेंट और इंटरनेट को बहुत बहुत सावधानी से यूज करना चाहिए। क्यों? सेम थिंग अगेन, इंटरनेट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वायरस। 10 मिनट बचा।
इंटरनेट वायरस का सबसे बड़ा स्रोत है, आज भी खत्म नहीं हुआ। ये जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे इसके चक्कर में। यस अंकित, यू कैन आस्क। अंकित, बोलो। सर जैसे अंकित, पूछ रहे थे कि जैसे अगर हम लोग के मोबाइल में वायरस गया है तो कंप्यूटर में तो मतलब कुछ भी एंटीवायरस करके मतलब वायरस को स्कैन कर सकते हैं और मतलब वायरस को हटा सकते हैं, पर अगर मोबाइल में गया है तो कैसे कर सकते हैं? मोबाइल में तो नहीं ना होगा, मोबाइल में तो कौन बोला, रूटेड कौन बोला, है ना। कौन बोला मोबाइल में नहीं है? मोबाइल में भी एंटीवायरस होता है, मोबाइल में भी एंटीवायरस होती है, मोबाइल के लिए भी एंटीवायरस आता है। सर तो क्लीन नहीं ना होता? एकदम होता है, एकदम क्लीन होता है। और सबसे बड़ी बात है, जब एंटीवायरस रहेगा तो वायरस आएगा ही नहीं, आने का सवाल ही नहीं है। अगर हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस है, मोबाइल में एंटीवायरस है, तो एंटीवायरस घुस ही नहीं सकता। अब जब घुसेगा ही नहीं तो क्लीन सर हम करने लोग का को सवाल ही कैसे क्या। पता चलेगा? कुछ बोल सर रहे हम लोग को हो? कैसे पता चलेगा कि हम लोग को वायरस है या नहीं? तुम्हारे पास एंटीवायरस है या नहीं है, अब ये तो तुमको देखना बस पड़ेगा। सर तुम्हारे पास कौन कौन से ऐप है उसको देखो, मगर मोबाइल के लिए एंटीवायरस तो अवेलेबल है। और रही बात मोबाइल में एंटीवायरस की, तो इतना जान ले, मोबाइल में वायरस लगता है, मोबाइल में वायरस लगता है, और खतरनाक भी हो सकता है। क्योंकि मोबाइल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जितना भी इंफॉर्मेशन है सब मोबाइल में रखते हैं हम लोग। बैंक अकाउंट मोबाइल में है, इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल में है, मोबाइल बैंकिंग मोबाइल में है। उसके बाद मान के चलो कि शॉपिंग वेबसाइट्स, शॉपिंग एप्स, वो भी मोबाइल में है। तो मोबाइल में जो है वायरस से ज़्यादा लगता है स्पाईवेयर्स, मैलवेयर्स। तो मोबाइल में सिर्फ एंटीवायरस से काम नहीं चलेगा, भले एंटीवायरस मत रखो मोबाइल में, मगर स्पाईवेयर और मैलवेयर प्रोटेक्शन तो रखना ही रखना चाहिए। अब तुमको खोजना है कि कौन ये प्रोटेक्शन देती है, तुमको रखना है। हाँ, हमको थोड़ी टेंशन है, हम क्यों नाम बताए किसी का, प्रमोट करे किसी कंपनी का, है ना? अंकित, सही कि नहीं? अंकित यस कुमार, या search for the mobile antivirus, you will get them. Ayushi Verma, Ayushi Verma, then अथर भगत। सर, ये जो पेज अथर, नंबर 35 में, हाँ बोलो। सर ये जो पेज नंबर 5 में एवीजी अवास्ट वाला दिया है, मतलब ये मतलब मेरा कंप्यूटर में है तो इससे एंटीवायरस लगने का डर नहीं रहता? नहीं एंटीवायरस है रहता है? वो। एंटीवायरस है, वायरस लगने का डर नहीं रहेगा, बट यू नीड टू अपडेट। if the virus protection is not updated regularly, you still have chance। अथर्व के बाद है माही कश्यप, अथर्व, अब है माही कश्यप। सर यस समृद्धि। सर जैसे आप रिक्वेस्ट का एग्जांपल दिए, जो हम लोग को जो अगर वो शो नहीं करता है तो वहाँ पे जैसे हम कोई वेबसाइट सर्च किए खाता है दिस सर्वर कांट कनेक्ट टू योर नेटवर्क, तो वो क्या रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं, देखो बहुत कुछ चीज है, जैसे कि बहुत सारे वेबसाइट जो है इंडिया गवर्नमेंट बैन करके रखी हुई है, ठीक है? बहुत सारे वेबसाइट्स ऐसे हैं जो अनलेजिटिमेट वेबसाइट्स है, उसको इंडिया गवर्नमेंट बंद करके रखा हुआ है। कोई भी सर्वर कोई भी तरीके से हम लोग उसको एक्सेस इंडिया से नहीं कर सकते। तो ऐसे है बहुत सारे,
जैसे जैसे मान के चलो चाइना में हम लोग गूगल का बहुत यूज करते हैं ना, मगर चाइना में गूगल बैंड है, चाइना में गूगल नहीं चल सकता, चलता ही नहीं है। ठीक है, जैसे ये तुम्हारा आई डोंट नो वेदर आई एम वेरी करेक्ट और नॉट, आइदर इट इज टर्की और आई थिंक ईरान और इराक, वहां पे भी गूगल बैंड है। तो ये जरूरी नहीं कि मेरे हम जो रिक्वेस्ट सर तो वहाँ पे वेबसाइट कौन सा वेबसाइट चलता होगा? वो हम नहीं बोल सकते कौन वेबसाइट चलता है, ये हम कैसे बोलेंगे कि वो लोग कैसे कौन वेबसाइट चलाता है, ये तो हम नहीं बोल सकते ना। वेबसाइट जो है ये ग्लोबली एक्सेसिबल है, बट व्हाट हैपेंस ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजन, जैसे मान के चलो लास्ट ईयर पबजी बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ सिक्योरिटी फ्लॉज था, उस सिक्योरिटी फ्लॉज को बंद करने के लिए पबजी बंद कर दिया गया। तो ये सब कारण हो सकता है किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को लेकर के कि नहीं लोड हो रहा है। अच्छा, माही कश्यप, एमडी अलशान पिछले दिन अटेंडेंस होते ही भाग गया था, तो तुम पिछले दिन एब्सेंट हो गया। सर एक और डाउट है हाँ समृद्धि, सर, आप स्पाईवेयर में बोले, जैसे स्पाईवेयर हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं तो, लेकिन गूगल में अब इनकॉग्निटो मोड है तो उसमें जाके हम लोग कुछ सर्च करते हैं तब भी स्पाईवेयर आ सकता है। हाँ एकदम आ सकता है, एकदम आ सकता है। लेकिन सर उसमें तो कोई डेटा सेव ही नहीं होता, तो फिर क्या करेगा वहां नहीं पर रख नहीं, करके? डेटा सेव नहीं होता है क्या? तुम्हारा वेब हिस्ट्री, सर्फिंग हिस्ट्री, सर्च हिस्ट्री सेव नहीं होता है, मगर उसमें भी कुकीज रहता है, कुकीज चलता है, इंफॉर्मेशन आ रहा है, इंफॉर्मेशन जा रहा है, वो तो चलेगा ना। तो जब इंफॉर्मेशन आ वहां पे जा रहा दिखाता है, है कि बोलो। जिस जिस ईमेल से हम लोग कर रहे हैं, या फिर जहाँ पे जिस वेबसाइट पे गए वो सिर्फ हम लोग का डेटा देख सकता है, या फिर जो हम लोग सर्च कर रहे हैं, जो भी डाल रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, तो फिर स्पाईवेयर कैसे देख लेगा? नहीं नहीं, स्पाईवेयर नहीं, वो सिर्फ मेरे मोबाइल से और कोई नहीं देख सकता, वो मेरे मोबाइल में स्टोर नहीं होगा। हम लोग को ये दूसरे के लगता मोबाइल में है, हो सकता है। हम लोग को ये लगता है, देख समृद्धि, जस्ट 2 जन का अटेंडेंस है, ले लेते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है? हम बढ़िया से समझा देंगे इसको, ठीक है? इसको हम बढ़िया से समझा देंगे तुमको। सतीश कुमार, सतीश कुमार हो गया। अब सूरज कुमार, सूरज 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 कुमार का नाम, मगर हम देख रहे हैं 3 दिन 4 दिन से सूरज कुमार। हाँ सूरज आ गया मिला। अच्छा, समृद्धि स्वरूप, समृद्धि के साथ बात कर रहे थे तो समृद्धि ऊपर थी तो इसका नाम नहीं लिया। समृद्धि स्वरूप हो गया, ठीक है। नाउ समृद्धि सर आप आज माइक यूज नहीं कर रहे हैं तो आवाज नहीं आ रहा है। हाँ आज मेरा माइक्रोफोन थोड़ा खराब है, ठीक है, आज मेरा माइक्रोफोन खराब है, थोड़ा आवाज कम ही आएगा। तो समृद्धि, जो बात हम लोग कर रहे थे कि हम लोग इनकॉग्निटो मोड में जब सर्फिंग करते हैं या सर्चिंग करते हैं तो वो सिर्फ हमको और जिस वेबसाइट से यूज कर रहे हैं उसको दिख रहा है ना? ये लिखा हुआ रहता है, वेरी ट्रू, इट्स वेरी ट्रू, बट कैन वी नो दैट एनी अदर वेबसाइट इज नॉट इंटरफियरिंग? नहीं, हम लोग नहीं बोल सकते। हम लोग जब एक पेज खोलते हैं ना, उस पेज में जितने भी लिंक्स होते हैं, जितने भी पिक्चर्स होते हैं, हो सकता है वो किसी दूसरे वेबसाइट से पिक्चर लिया गया हो। जब वो दूसरे वेबसाइट से पिक्चर लिया हो तो वो पिक्चर उस वेबसाइट से ही खुलेगा। तो आप समझ में आ गया? हम लोग खोल रहे थे एक वेबसाइट, मगर बैकग्राउंड में वो किसी दूसरे वेबसाइट में पहुंच जाता है। हम लोग को लगता है कि इनकॉग्निटो मोड में अगर हम लोग सर्चिंग करते हैं, सर्फिंग करते हैं, तो हम लोग को कोई नहीं देख सकता। गलत।